आज करीब 4.5 घंटे तक CWC की बैठक चली और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है आज, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। और उसकी पूरी जानकारी अभी आपको KC वेणुगोपाल जी देंगे। साथ ही साथ आपको जो प्रस्ताव पारित किया गया है आज, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji. Good evening, everybody, friends. Congress Working Committee met today to discuss the current political situation in the country. The meeting attended by the CWC members, permanent invitees, special invitees, and the Chief Minister and Deputy Chief Ministers of the states. Altogether, 81 people were attended in today's CWC meeting. CWC had a detailed discussion on the current political situation in the country, including the recently concluded assembly elections. We analyzed the performance of the party in the last assembly election concluded. The CWC has decided to constitute internal committees to look into the matters related to the electoral performance and organizational matters in the block and district. CWC already passed the resolution that I would like to read out to you. Along with this, party also has to decided to celebrate 100th anniversary of the presidency of Mahatma Gandhi in 1924 at Belgaum in December. You people know that in 1924, December 26, Mahatma Gandhi ji elected as a Congress president in Belgaum session. We are celebrating 100th anniversary of that celebration in Belgaum. An extended working committee will be held, followed by a massive rally in Belgaum. Our resolution: the CWC met today in the midst of the winter session of Parliament, which has been washed out so far because of the Modi government's stubborn refusal to have an immediate discussion on three pressing national issues: on the recent revelations regarding brazen corruption by the business group with whom the Prime Minister himself has the most intimate relationship, continued violence in Manipur, and the abdication of all responsibility by the PM, who was not even once visited the troubled state since May 2023, and systematic attempt to BJP to foment communal tensions in different states, most recently in UP. After reiterating its firmest commitment to the letter and spirit of the Place of Worship Special Provisions Act 1991, which is being violated recently by the BJP, the CWC discussed the challenges faced by the Indian National Congress following the results of the 4 Vidhan Sabha elections. The overwhelming victory of the Srimati Priyanka Gandhi Vadra in the Wayanad by-election has generated a massive wave of enthusiasm amongst the party workers, especially as well as among the wider public. The CWC thanks the people of Jharkhand for the decisive mandate they have given the JMM, INC and other India parties. They have resoundingly rejected the dangerously divisive and poisonously polarizing campaign of the BJP, spearheaded by the Prime Minister, Union Home Minister, the CM of Assam and the former CM of Madhya Pradesh. The CWC thanks the people of JNK for the confidence they have placed in the Indian National Congress and the NC alliances in such a clear manner. While accepting that our own performance should have been better, our party will continue to press for the restoration of full-fledged statehood to JMK. The CWC also acknowledged the party performance in Haryana has been contrary to all expectations. Very simply, INC should have formed the government in the state by a convincing margin, but it didn't.
but there have been electoral malpractices that have influenced the result in the state which have been overlooked. The CWC also accepted that the party performance, as indeed that of its MV allies in Maharashtra, has been inexplicable and is in fact shocking. The electoral outcome is beyond normal understanding. It appears to be a clear case of targeted manipulation. CWC expresses its hope and confidence that the Congress President will complete the detailed state-wise review soon and take the necessary follow-up action, particularly in relation to organizational matters. This matter need urgent attention both at the AICC level as well as in all states. That CWC calls upon the INC organization at all levels to summon the maximum strength and resilience at this juncture. There is no reason to get disheartened or panic. We must persevere with a renewed determination and resolve. Unity and discipline are called for now more than ever before. The issue the party placed before the people during the Bharat Jodo Yatra, Bharat Jodo Nyaya Yatra and the Lok Sabha election campaign are the issues of daily concern to the people of our country. The party must keep reinforcing its narrative. This includes caste census to ensure full social justice, removal of the 50% ceiling on reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs, control of growing monopolies in the economy through political patronage and continuing price rise and growing unemployment. Finally, the CWC believes the integrity of the entire electoral process is being severely compromised. Free and fair election is a constitutional mandate that is being called into serious question by the partisan functioning of the Election Commission. Increasing sections of society are becoming frustrated and deeply apprehensive. The Congress will take these public concerns as a national movement. अब मैं कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को हिंदी में आपके सामने पढ़ूंगा। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया, इस साल की ये तीसरी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और अब ज़्यादा न बोलते हुए मैं सीधा प्रस्ताव पर आता हूं। आज संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जो अब तक 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने से मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण विफल रहा है। हाल ही में उस व्यापारिक समूह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासे, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री का अत्यंत सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर में जारी हिंसा और प्रधानमंत्री द्वारा सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। नंबर 3, इसी का पहले मणिपुर का हिस्सा, जिन्होंने मई 2023 के बाद से एक बार भी इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। और तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्य समिति ने 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। वायनाड उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की भारी जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में खास तौर पर उत्साह की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति झारखंड की जनता को जेएमएम, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के खतरनाक रूप से विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति जम्मू कश्मीर की जनता को स्पष्ट तरीके से एनसी कांग्रेस गठबंधन में विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारा अपना प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी।
कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत रहा है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी अंतर से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में चुनावी गड़बड़ियों के ने नतीजों को प्रभावित किया है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्य समिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर एआईसीसी स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से कहीं अधिक एकता और अनुशासन की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पार्टी ने लोगों के सामने जो मुद्दे रखे थे, वे हमारे देश के लोगों के लिए दैनिक चिंता के मुद्दे हैं। पार्टी को अपने नैरेटिव को लगातार मजबूत करना चाहिए। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और निरंतर मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। धन्यवाद। You must, take effective steps in terms of not depend on national leaders or national issues, bring up local issues. And this is all part of something that you all decided in Udaipur, Chintan Shivir. Why, what is stopping the party for the last 2 years? I'm not able to understand that. Nothing stopping. Whatever whatever things which we have not done so far, we are going to expedite all these decisions. Anyway, Karnataka we fought election like that only. Telangana we fought elections that only. Himachal also we fought election that only. Kharge ji read out the resolution 2018 on EVMs. Now, what is the party stand exactly coming out in this CWC? Are you against EVM? Do you want ballot paper? Because there is no clarity from what has emerged from the CWC. Yeah, so are you standing by that resolution that Yes. you have to go back? That you have to go back to yes. the ballot? But it has not been mentioned in your resolution, today's resolution. The solution is very clear that our So same, it was the same. So the CWC has deliberated for over 4.5 hours on the outcome of the poll results, recent poll results. So what has been the crux of it? Because you are either blaming the EVMs, like as you said, that electoral malpractices, or infighting, or lack of unity and all that. What is the exact reason? We clearly emphasize the electoral malpractices had happened during these elections. We are already sent a technical team to Haryana, and technical team we are going to send to Maharashtra also. We will have a detailed analysis on booth level. There are so many complaints are coming in the public domain also. There are so many complaints about the voters list.
about the discrepancy of the polling numbers during the time of 5 p.m. and during the time of 10 p.m. This type of lot many things are there. So we will do a thorough analysis. There will be two level of analysis will be there. One political, one another is technical. We will come with a final call. And in meanwhile, we already told in the resolution, we will have a national movement. सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी और टफ डिसीजंस की बात की है, तो किस लेवल पर ये डिसीजंस होगा और क्या ये महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर एक डिसीजंस होगा, अकाउंटेबिलिटी तय होगी? बिल्कुल, you will see the decisions. After Congress President already told all these things, we will take stock of the situation and take decisions. सर, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई, धांधलियां हुई और ये समझ के परे है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतना आप लोग में गुस्सा है कि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, कि अब आप जनता पे गुस्सा निकाल रहे हैं और देश के हितों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल खड़े कर। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं, और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या तब वो गुस्से में बोलते थे। तो बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको, बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही। पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग बार बार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप करेंगे क्या आगे? बात खारिज करने की नहीं है, बात है जवाब तो दीजिए। अगर आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दें पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? आप कह रहे हैं सिर्फ ईवीएम पे हमारा नहीं है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि सारी चुनावी प्रक्रिया आखिर में जाके तो ईवीएम और उसके रिजल्ट पे ही टिक जाती है। तो 2018 में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, खड़गे जी ने कहा कि हम बैलेट पेपर की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। आज स्थिति क्या है? क्या आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान 100% मिलान से सहमत हैं या बैलेट पेपर पर वापसी चाहते हैं? Brother, basically that resolution, if you read the resolution, everything is in that. We are talking about a movement for free and fair election. In that everything will come. देखिए, अगर मूवमेंट की बात हो रही है तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों तक जाना, लोगों की बात सुनना, उनसे भी सुझाव लेना। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? लोगों से संवाद किया, संवाद करने के बाद मुद्दे मिले, उन मुद्दों को हमने लोकसभा के अपने मैनिफेस्टो में डाला, उसका रिजल्ट आपको दिखा। तो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जनमानस को भी तैयार करना, लोगों में आम सहमति बनाना, लोगों की सुनना, लोगों से अपना संवाद स्थापित करना इस मुद्दे पर बहुत आवश्यक है। जी सर, एक तो आपके रेजोल्यूशन में एक रोचक बात है कि आपने एक व्यापारिक घराना कहा है, नाम नहीं लिया है सीधे तौर पर, तो इसके इस बदलाव के पीछे क्या आधार है? और ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं आप? सीधा सवाल है। क्या सीधा सवाल है? आंसर इज अडानी। रेजोल्यूशन में नाम ना होने के पीछे क्या वजह है?
क्लियर कर दिया। और सर, प्रधानमंत्री ने उड़ीसा से आप लोगों पर निशाना साधा है और कहा है कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता के भूखे लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप लोगों को चौकीदार चोर नहीं लग रहा। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। और वो ये कह रहे हैं सर कि जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अब उनके 10 साल के भाषण वो खुद सुन लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुमराह इस देश में कौन किसको करता है। एक मिनट, ये जो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नज़रअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर वो निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की। उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो 26 और 27 दिसंबर को नहीं, 28 को फाउंडेशन डे है, उससे पहले, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो 1 साल के लिए, सिर्फ मात्र 1 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। तो उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इसको हम आगे ले चलेंगे और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के और भी विभिन्न पार्टियां होंगी। क्या इसको लेकर एक कोई व्यापक बैठक वगैरह आप लोग करने वाले हैं? 18 दिसंबर 2023 को सारे इंडिया जनबंधन के पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित किया था और वो प्रस्ताव था कि 100% वीवीपैट होना जरूरी है। हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया। वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग के साथ कभी हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारी ये मांग है कि हमारी मांग तो सुने, जो हम कह रहे हैं, तब हमने पारित किया था। और आज भी मैं जो कह रहा हूँ, ये जो जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, आज ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न पार्टी सहमत हैं इस राय से कि चुनावी प्रक्रिया जो एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, वो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा नहीं हो रहा है। और लोगों के मन में आशंका ये है
कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, लक्षित तरीके से माने झारखंड आप जीत लो पर महाराष्ट्र हमारा है। Jairam sir. Sir. Sir, because you are speaking. Sir, because you are speaking about the violence which has happened in Uttar Pradesh and Manipur, but there are some international issues which have also become a pressing concern, as there is continuous violence and the attacks which are going on in Bangladesh temples as well. Is there any discussion that have taken place in CWC regarding already this? Congress President Rahul Gandhi and party had been communicated that issue very strongly. Actually, the government of India totally failed in that to save the minorities of Bangladesh. Today, CWC also discussed about that issue. We are asking the government of India to take immediate steps to save the minority people in Bangladesh.